रॉयल थाईलैंड के कौमी दिन के मौके पर कौंसल जनरल ऑफ थाईलैंड मिस्टर नारुत सुनतोम की जानिब से होटल आवारी टावर के पूल साइड में एक अशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। थाईलैंड के कौंसल जनरल मिस्टर नारुत सुनतारोडोम, पाक थाई बिजनेस काउंसिल के सदर आरिफ सुलेमान, थाई कौंसलेट के मुबीन अंसारी, थाई एयरवेज के राशिद सिद्दीकी और दीगर ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की आमद पर उनका खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध की आमद पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए, जिसे शुरका ने एहतरामन खड़े होकर समाअत किया। बाद अज़ां कौंसल जनरल थाईलैंड ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, His Excellency Governor of Sindh Mr. Muhammad Kamran Tickery, Dr. Jun Punpono Hanilikat, Dean of Consular Corps, Mr. Arif Suleiman, President of Pak Thai Friendship Association and Business Forum, Excellency, under the reign of His Majesty King Maha Vajiralongkorn, the current King, friend, for joining us to celebrate this occasion. The relationship between गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने थाईलैंड के कौंसल जनरल और दीगर ममालिक के कौंसलर जनरल समेत दीगर शुरका के हमरा थाईलैंड की सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर साबिक सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, लाहौर से आए हुए मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, अख्तर खान टिसोरी, आरिफ सुलेमान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर थाईलैंड के कौंसल जनरल समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल ने इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, फिलिपाइन, मोरक्को, यमन, यूएई, ओमान, कतर और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल और एजाज़ी सिफारती नुमाइंदों समेत बिजनेस कम्युनिटी और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, फिलिपाइन, मोरक्को, यमन और दीगर ममालिक के सिफारती नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने थिंक टीवी से बातचीत करते हुए कहा, This is our National Day of Thailand and the birthday anniversary of the late King Bhumibol Adulyadej. So Thai people celebrate the Thai National Day today. Actually, it's the 5th December tomorrow. We really appreciate the coming of the Pakistani guests and business community and also the diplomatic corps coming here. Express my warm congratulations to the Thailand National Days. And Pakistan have a very good relations with Thailand. China also have a very good relation with Thailand. And so recent years and China relation with Thailand is keep on increasing and develop very fast. And we have and maintained the high level contact and the cooperations in many areas are strengthening. And the people to people between China and Pakistan and getting closer and closer. So now we can see that many Chinese tourists are visiting Thailand. So, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. This event tonight is to commemorate the King's birthday of Thailand. And of course, it is a great moment for Thailand and also Malaysia as the good neighbor of Thailand. We always be friendly with our friends, and of course Thailand in ASEAN also among the ASEAN consulates in Karachi, we are very close, always have events, many events together, especially for ASEAN. And I would like to congratulate
and wish all the best to Thailand. Thank you. As the Dean of Consular in Karachi and also as a part of the ASEAN member, we would like to wish for the Thailand colleagues and Thailand CG a very blessed years and for improving and better relation with Pakistan and Thailand also a very good place in Pakistan health. Zindabad. I'm the Sri Lanka consul. I'm very pleased to attend this Thai National Day, and we had a very pleasant day here. And I want to thank the Consul General as well for the great event. यहाँ पे सेलिब्रेट होता है और ये दोनों मुल्कों का आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इनमें और मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए और हम हमेशा अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको दुआ करते हैं और उनके वेल विशर हैं। आज थाईलैंड का नेशनल डे और जो किंग्स हैं उनकी बर्थडे है, जो लेट हिज मैजेस्टी किंग थे। एक्चुअल जो डे है नेशनल डे वो 5 दिसंबर है, तो ये आज सेलिब्रेट किया और एक्चुअल कल है जो सारी थाईलैंड वगैरह में छुट्टी है। तो थाईलैंड और पाकिस्तान के आपको पता होगा रिलेशन तो काफ़ी पुराने हैं, ऑलमोस्ट 72 ईयर्स हो चुके हैं और पिछले दिनों कोविड की वजह से वॉल्यूम जो ट्रेड था वो काफ़ी डाउन हो गया था, ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया था और अभी भी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो फेवर में थाईलैंड की है, जैसे कि 1.4 मिलियन जो है मिलियन डॉलर वो थाईलैंड की फेवर में है और ऑलमोस्ट 426 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उनको है जो पाकिस्तान की फेवर में है। बट टूरिज़म में आपको पता है तकरीबन साल में लाख के करीब जाते हैं हमारे यहाँ से। ये वो जाते हैं जिनके टूरिस्ट वीज़ा लगते हैं, वो अलग हैं जिनको बिज़नेस वीज़ा लगते हैं या वो जिनके पास अदर नेशनलिटी है तो वो थोड़ा अब वो काउंट नहीं होते। लेकिन काफ़ी अच्छा बिज़नेस है और आपको पता होगा कि इस साल जो वर्ल्ड में टूरिज़म के हिसाब से थाईलैंड का नंबर 1 रहा है, नंबर 1। इसके बाद फिर दूसरी कंट्रीज़ आई है, थाईलैंड का नंबर 1 रहा है। तो काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, यहाँ से काफ़ी लोग जा भी रहे हैं और अब इंपोर्ट वगैरह शुरू हो रही है और एक्सपोर्ट तो अपनी जगह पे हो ही रही थी, अब इंपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स थे एक्सचेंज के और तो अब बेहतर हो रहा है। थैंक यू सर। तो फिर सारे ही मुल्कों के होते रहते हैं, मगर थाईलैंड से हमारे चूँकि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं जेम्स एंड ज्वेलरी के हवाले से भी कहूँगा कि थाईलैंड बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है यहाँ से एक्सपोर्ट करने का। तो यहाँ थाईलैंड के जो कौंसल जनरल हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट लेते रहते हैं और जब इनकी एग्जीबिशन होती है सितंबर में तो ये यहाँ से काफ़ी सहूलतें भी देते हैं पाकिस्तानियों को और हमारे रिलेशन वैसे भी आपस के काफ़ी बिजनेस रिलेशन बढ़ रहे हैं और भी चीज़ों में मतलब ये कि काफ़ी मैं समझता हूँ कि वहाँ एक्सपोर्ट के बड़े चांसेस हैं जो पाकिस्तान अवेल करेगा इंशाल्लाह। तो मुझे खुशी है कि आज यहाँ पे आए, उनको मुबारकबाद भी दी और इनकी सालगिरह भी। दूसरे ये पाकिस्तान और थाईलैंड के फ्रेंडशिप जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह थाईलैंड का कौमी दिन है और यहाँ पे हम सारे मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं माशाल्लाह। और आपने देखा कि यहाँ पे सारे डिप्लोमेट्स आज इस तकरीब में मौजूद हैं। तो मैं कोई सियासी बात बहरहाल नहीं करूँगा, बट ये है कि थाईलैंड के साथ जो है बड़े पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और आप देख रहे हैं कि अभी हमने जो है थाईलैंड के साथ काफ़ी सारे फेडरेशन में भी MOU साइन किए हैं और कई बायलैटरल ट्रेड पे भी थाईलैंड से कई दफ़ा हमारी बातचीत हुई और पर्सनली भी मेरी भी थाईलैंड के जो CG हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके साथ पाकिस्तान और थाईलैंड के साथ बायलैटरल ट्रेड पे काफ़ी काम चल भी रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल इन द नीड ऑफ आवर कंट्री। जिस वक्त पाकिस्तान को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर, तो आई विश थाईलैंड वेरी हैप्पी नेशनल डे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर इमरान, ऑनररी कॉन्सल जनरल फिलीपींस। आज थाईलैंड का नेशनल डे है और थाईलैंड एक आसियान कंट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है
पाकिस्तान की ट्रेड थाईलैंड के साथ है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आसियन कंट्रीज़, ऑन बिहाफ ऑफ फिलीपींस एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। थाईलैंड के इस कौमी दिन के ऊपर बहुत मुबारकबाद। देखिए, थाईलैंड की जो डेवलपमेंट और जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वो एक रोल मॉडल है। टूरिज़्म में जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है वो रोल मॉडल है। तो हमें थाईलैंड से बहुत कुछ सीखना चाहिए और थाईलैंड के साथ आपने ये देखना है कि उन्होंने फूड इंडस्ट्री में हैरत अंगेज तरक्की की। हम भी यही तरफ हमारी स्ट्रेंथ है। तो मैं समझता हूँ आज के दिन हम ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसमें टूरिज़्म की, टेक्सटाइल की, ज़राअत की, फूड स्टफ की जो उन्होंने तरक्कियाँ की हैं जैसे अनबिलीवेबल हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ थाई कौंसल जनरल को, तमाम थाई बाशिंदों को जो पाकिस्तान में और जो बाहर हैं इस नेशनल डे सेलिब्रेशन के। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ और इनका नेशनल डे थाईलैंड का अटेंड कर रहा हूँ। और थाईलैंड का नेशनल डे का इंतज़ार रहता है पूरे साल। और आज यहाँ पे जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं उसमें बिजनेसमैन भी हैं, डिप्लोमेटिक सर्किल के भी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हर तरह के लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं एक बार फिर थाई कौंसल जनरल को और थाईलैंड को मुबारकबाद देता हूँ कि नेशनल डे की सेलिब्रेशन। थैंक्स। इनको आज बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज उनका जो है नेशनल डे है, सब इधर आए हुए हैं। और थाईलैंड पाकिस्तान का बहुत कदीम पुराना ताल्लुक है। काफ़ी कारोबार एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और वी होप फॉर द बेस्ट कि आगे फ्यूचर में भी जो है थाईलैंड और पाकिस्तान अपने बिजनेस को आगे बहुत बढ़ाएगा और इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे। माशाल्लाह से हम अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं थाई गवर्नमेंट को, थाई के किंग को कि उनको ये मुबारकबाद और मोर सक्सेस। और माशाल्लाह से उन्होंने अपने मुल्क को बड़ी तरक्की की है। अल्लाह करे वो और तरक्की करें और हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ बलगम वाला। आज थाईलैंड का कौमी दिन है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। मैं 4 दिन पहले थाईलैंड से आया हूँ और थाईलैंड में इतनी अब तरक्की हो रही है कि इन्होंने वर्ल्ड की एग्जीबिशन कराना शुरू कर दिया स्टैम्प्स की, ज़बरदस्त किस्म की, जैसे यूरोप में होते हैं, अमेरिका में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार। और यहाँ का जो सीजी है वो भी बड़ा अच्छा है, बड़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। और थाईलैंड और पाकिस्तान का वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस प्रमोट हो। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस वक्त थोड़े दिन पहले करेंसी का और ये इंपोर्ट का थोड़ा अलाउड नहीं था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन अभी मेरा ख्याल अच्छा हो रहा है, रोज़ बरोज़ थोड़ा थोड़ा छूट हो रही है और मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि चीज़ें हमें थोड़ी कम दामों पे भी मिल रही हैं थाईलैंड से, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। जो है सलूट करते हैं हम हर हमारे एक डिप्लोमेट इवेंट्स में आप लोग माशाल्लाह जो है शामिल होते हैं और साबिर भाई का इंटरेक्शन इतना क्लोज होता है हर एम्बेसीज़ के साथ कि उसको सपोर्टिव हो जाती है। रहा सवाल थाईलैंड का, तो मैं समझता हूँ थाईलैंड का बड़ा अहम रोल है इस वक्त हमारी ऑटो इंडस्ट्री में और फर्दर हमारे कंज्यूमर आइटम्स में। तो थाईलैंड इसलिए पेनिट्रेट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी थाईलैंड में आ चुकी है, बगैर टेक्नोलॉजी के हम आगे चल नहीं सकते। और इस वक्त एम्बेसी इनकी थाईलैंड की बहुत ही अट्रैक्टिव रोल अदा कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, चाहे इम्पोर्ट करें या एक्सपोर्ट में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इम्पोर्ट में बहुत सपोर्ट करती है। मैं ये समझता हूँ कि थाईलैंड जो है आई थिंक जो है वो एक अच्छा जो है ब्रिज बनने जा रहा है हमारे एशिया की तरफ। थैंक यू जनाब। हम जापानियों के लिए बहुत हमसाया मुल्क और बहुत दोस्ती मुल्क है, तो बड़ी खुशी हुई आज मुझे। थाईलैंड के बादशाह की सालगिरह नेशनल डे। जी हाँ, तो थाईलैंड में कितने जापानी कंपनियाँ सरमाया कार कर रही हैं तो मुझे पता नहीं, अनकाउंटेबल। तो ऐसा है, ये पाक नहीं, थाईलैंड एंड जापान की दोस्ती पॉइंट ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शमून ज़की है। आज ये तकरीब है नेशनल डे की जो कि थाईलैंड कौंसलेट ने अरेंज किए हैं यहाँ पर, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है यहाँ पर। जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, जिसमें फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी आए हुए हैं और कराची चैम्बर्स के लोग भी आए हुए हैं, बहुत सारे कौंसलेट और एम्बेसीज़ के लोग ने भी अटेंड किया। और मैं समझता हूँ इस तरह की तकरीब से एक अच्छा मैसेज निकलता है बिज़नेस कम्युनिटी में भी, और ना कि हमारे चैम्बर्स में, फेडरेशन में इस तरह की तकरीब रहनी चाहिए। माशाल्लाह जो आज की तकरीब में रौनक
कॉन्सुलेट ने अरेंज किए हैं, जिसमें मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट से। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि इस तरह की तकरीब रखनी चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को मिलजुल रखना चाहिए। इससे बायलैटरल ट्रेड भी इंक्रीज़ होता है, बिज़नेस भी इंक्रीज़ होता है और एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है हर जगह हमारा। हम तो ये कहते हैं, दुआ करते हैं जिस तरह दूसरी कंट्रीज से भी पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं, थाईलैंड से भी और स्ट्रॉन्ग हो और मज़ीद और दूसरे मुल्कों से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। The National Day of the Kingdom of Thailand is a very important today for the Royal Thai Consulate General and Thai people mostly living in the Karachi. So they are celebrating their National Day very proudly. We are very proud of their national, and we wish them a good National Day. Thank you. Thank you. You ask please few words. Thank you. It's a very pleasure to be here. My name is Tracy, and it's a pleasure to be here to celebrate this festival of theirs. Thank you. फारूक चौधरी है और मैं थाई कॉन्सुलेट जहाँ इनकी कॉन्सुलेट जनरल है, मैं उसका ऑनर भी हूँ उस बिल्डिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये हम इवेंट बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सब कॉन्सुलेट जनरल्स को वेलकम करते हैं जो सब आए। थाईलैंड आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी तफरीह की जगह है, हर साल लाखों लोग वहाँ जाते हैं। थाई फूड सब लोग पसंद करते हैं, हर जगह इनके एग्जीबिशन लगते हैं और हम इस मौके पे कॉन्सुलेट जनरल और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के नेशनल डे के हवाले से कुछ आप कहेंगे, मुबारकबाद देंगी दोनों? मैं सबसे पहले थाईलैंड को कॉन्ग्रेच करती हूँ कि उनका नेशनल डे है और वो पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में बिल्कुल यूनिटी के साथ सेलिब्रेट हो रहा है। बड़ी खुशी हो रही है देख के कि नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनके भी और हमारे भी, और ऐसे ही रिलेशनशिप थाईलैंड और पाकिस्तान के मेंटेन रहे तो इस तरह के इवेंट्स होते रहें तो अच्छे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो नेशनल डे है थाईलैंड का, हम सबको मिल के मनाना चाहिए। हमारे मुल्क का कल्चर है कि हम मिल के प्यार से रहते हैं और यहाँ बहुत अच्छा उन्होंने अपना जो उनका तराना था, हमारा तराना इकट्ठे हुआ, गवर्नर साहब आए, नासिर हुसैन शाह साहब आए और बहुत अच्छा मिलाप था। यानी कि हमें एक साथ मिल के, ये खाली थाईलैंड के लिए नहीं कह सकती हूँ, मैं इंडिया के लिए भी कह सकती हूँ कि हमें मिल के मोहब्बत जो चीज़ है वो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान को और बाहर मुल्कों को भी चाहिए और पब्लिक तो यही चाहती है, तो हम सबको मिल के इनके साथ अप्रिशिएट करना चाहिए और इस दिन को खुशियों के साथ मनाना चाहिए। आज के नेशनल डे पे मैं ये कहूँगी कि वेरी हैप्पी टू सी दैट हम लोगों का रिलेशन पाकिस्तान का और दोबारा बोलते हैं थाईलैंड पाकिस्तान। हाँ जी, मैंने कहा बड़ी खुशी हुई देख के थाईलैंड और पाकिस्तान का रिलेशनशिप इतना अच्छा है। दोनों के नेशनल एंथम चले और दोनों ने एक दूसरे के नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दिया। सो यही कहूँगी एक दफ़ा और थाईलैंड को वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।